हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड पॉडकास्ट ऑफ आई ट्रिपल स्टूडेंट बैच पीआरपीसीएम। आज हम बात करने वाले हैं वुमेंस डे के बारे में, वुमेंस की लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में, तो उनकी जो कुछ सॉल्यूशंस होंगे उसके बारे में। तो आज हमारे साथ है नंदा मैम। सो मार्क योर अटेंडेंस ऑन सब्सक्राइब बटन। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Welcome ma'am, my name is Shrutika Pandey My name is Achal Akolkar. and we are from IEEE branch. So hello everyone, as you know today's our postcard is based on International Women's Day. तो हमारे साथ आज है Dean of Student Welfare Trust नंदा मैम. So मैम as you know अपना पॉडकास्ट इंटरनेशनल वुमेंस डे पे, so मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि what does International Women's Day mean to you? See, being a woman, it is actually not a question worth asking because I'm happy for this. It is being celebrated. What we are doing, we are celebrating the political rights, the cultural rights, social rights of women on this day. We actually don't need a day to celebrate it, but by everyone it is given a special day, so we should enjoy it. We should feel the importance of this, and we should also keep in mind that many people have already fought for the equality right, for the gender equality, for sexual harassment, everything what we actually take for granted today, but many people have fought for this. Okay, so this is a very special day. We should take it in a very positive way, and we should enjoy the things, the rights that we have been given in a correct way. We should not go beyond the things. We should not take it in a negative way. We should always have a proper way of using our rights. That's it. Ma'am, why did you choose this field as your career? Now it is into my genes. My mother, मेरी मम्मी जो है वो टीचर है. Actually she is a homeopath doctor, but belonging to a middle class family. So ऐसा हुआ कि मैं और मेरा भाई दोनों हम लोग हमें पढ़ाने के लिए she gave up her doctor career कि नहीं, दोनों छोटे हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, मुझे ख्याल रखना है बच्चों का. She started teaching us. The area where we used to live, I belong to Amravati. The area where we used to live, there people were not that much educated that time. तो उन्होंने आके मम्मी से रिक्वेस्ट किया कि ठीक है, आप अपने बच्चे पढ़ाते हो, हमारे भी पढ़ाओ साथ में. And in that way she came into the teaching field. So that was a total different thing. She's a doctor and now she's a teacher. Now she successfully runs a coaching class for students from junior KG to 10th standard. So it's into my genes. That automatically came into me that I have to go into this profession. And as we look upon Amravati, there's no industry for electronics and telecommunications, especially where, like we have in Pune, Bangalore, Hyderabad, everywhere. For the metro cities, we have that option. Here we don't have that, so I'm fine with this. It automatically, the opportunity also came automatically. I had never decided that I'll be going for a multinational company or I'll be doing this, that. I always went with the flow. I have worked hard for my studies, everything, पूरा support था, family से सब था. After marriage, my husband, my in-laws, they supported me कि ठीक है, आप आगे अपने मास्टर्स करियर pursue करो, जॉब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, करना है तो करना, नहीं करना है तो मत करना. So in that way, my mother-in-law once said me कि हम 4 ही लोग हैं, 4 लोगों के लिए 2 लोग खाना बनाएंगे. So that inspired me a lot कि नहीं, 2 लोग क्यों खाना बनाएंगे 4 लोगों के लिए. So she told me कि नहीं, आप जॉब करो, करना है करो, नहीं करना है मत करो. So that way I entered into it. After marriage I started my first job. Before marriage I was not into it. So like that, the destiny took me here. Who were the inspiration for your career throughout? Throughout, of course, my mother. वहाँ से मैं इंस्पायर हुई कि टीचिंग करना है, ऑटोमेटिकली आ गया जैसे मैंने बताया आपको. सो दैट वाज देयर. बट with the inspiration, somewhere I think for women it is very important that you get a specific support from your family, which is very important. Before marriage I have always got support from my father. He never asked me or he never pushed me to do something. He never took me back.
उन्होंने कभी नहीं बोला ये करो ये मत करो. He always taught me that जो करना है अच्छे से करो, so that when you look into the mirror, you should be able to face yourself. Okay, so every girl should keep this in mind. Every girl, every boy should keep this in mind. That if your parents trust you, you have to keep their trust as it is. ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठे हो तो पेरेंट्स को नहीं पता चल रहा है, ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं होता है. That is the age where you cannot discriminate between right and wrong. So it is very important कि ऐसा कोई काम मत करो, you cannot face yourself into the mirror. तो ये हमेशा पापा ने ऐसा ही सिखाया, मम्मी ने. देन आफ्टर दैट अगेन आफ्टर मैरिज, एज आई टोल्ड यू ऑल, कि पूरा सपोर्ट रहा इन लॉज से, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ. माई हस्बैंड इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इज़ माई बेस्ट क्रिटिक, ही इज़ माई बेस्ट सपोर्ट, एवरीथिंग. मेरा कुछ गलत होता है तो भी वही बताते हैं, सही होता है तो भी वही मोटिवेट करते हैं. एंड द बोल्डनेस केम फ्रॉम देयर. बिफोर दैट आई वॉज नॉट दैट बोल्ड, बट ही हैज़ टॉट मी मैनी थिंग्स कि किस तरीके से आपने सराउंडिंग में, वे यू हैव बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेन विमेन टुगेदर, किस तरीके से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए बिटवीन योर बिहेवियर. सो दैट हैज़ बीन टॉट बाय हिम. तो अगेन ही इज़ अ बेस्ट क्रिटिक फॉर मी एंड अ बेस्ट सपोर्ट ऑल्सो. सो एवरी वन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट द रूट स्टार्टेड फ्रॉम देयर. As you know मैम, वुमेन्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ बैरियर्स. Yeah. तो आपके लाइफ में कौन से बैरियर्स आए थे? लकीली देयर वाज नो बैरियर लाइक दिस. ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ में कि मुझे कुछ ऐसा फेस करना पड़ा. बट जहाँ कहीं हम लाइफ में देखते हैं तो ऐसा पता चलता है कि women are facing especially gender discrimination, or somewhere they are facing sexual harassment, somewhere they are also facing improper education. तो ये चीज़ें हैं, लकीली मेरे लाइफ में नहीं आई. बट अभी भी हम देखते हैं कि अगर घर में कोई बेबी होता है तो पहला क्वेश्चन ये होता है बॉय है कि गर्ल है. सो दैट इज़ स्टिल देयर इन टू द रूट्स इन द इंडियंस. तो उसमें धीरे धीरे चेंज हो रहा है. एजुकेशन के साथ में काफ़ी चेंजेस आए हैं. जितना पहले के टाइम में लोग नहीं एजुकेट करते थे गर्ल्स को, उतना अभी अच्छे से हो रहा है. सो आई थिंक दे विल बी मोर प्रोग्रेस इन टू दिस. जैसे मेरे लाइफ में नहीं आया कोई बैरियर, आई होप इट फॉर एवरी वन. Now it comes personally from me that when you said sexual harassment and things like that, harassment only doesn't happen physically. It also happen by looking at someone. Yes. By the vibe. Yes. So what are your views that how we should protect ourselves and सी दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि एक लाइन ड्रॉ करनी ज़रूरी है. ठीक है, आपके ग्रुप में बॉयज़ होना भी ज़रूरी है, गर्ल्स होना भी ज़रूरी है. वी डोंट, व्हेन वी यूज्ड टू बी इन स्कूल, आई वाज फ्रॉम अ कंप्लीट गर्ल्स स्कूल, होली क्रॉस. सो गर्ल्स स्कूल है, फिर एकदम से 11th में कॉलेज में गए. सो दैट शुड नॉट हैपन कि हाँ अभी बॉयज़ है, अब मुझे उनसे ही बात करनी है. दैट ओपननेस शुड नॉट, देयर शुड बी अ बैरियर. ये पहली चीज़ है. एवरी गर्ल शुड ड्रॉ अ लाइन कि मेरी ये रिस्ट्रिक्शंस है. आप सबसे बात करो, आप सबसे अच्छे से रहो, बट देयर शुड बी अ रिस्ट्रिक्शन कि हाँ मेरा बिहेवियर यहाँ तक के ही अच्छा है, यहाँ तक सूटेबल है. अब उनकी तरफ से जो नेगेटिव वाइब्स आ रही है, यू शुड स्टैंड फॉर इट. यू शुड नेवर लुक डाउन टू इट कि उसको छोड़ना नहीं है. कि आपको लग रहा है कि किसी ने लगे तो आपको मारा नहीं है, बट like you're saying, with eyes also you'll get harassed. So that should be a thing. You should speak loud for it. No means no. When a girl says no, it is a no. It should be a no. तो वो आपके और सेम वैसा ही है कि आपको बोल के बताने की ज़रूरत नहीं है. आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज में. नहीं मीन्स नहीं. सो दैट शुड बी देयर. वंस यू प्रैक्टिस दिस, आपके इसमें एक अगर आता है तो आप कितने भी, अगर पूरे 100 जेंट्स है और आप अकेले भी वहाँ काम कर रहे हो, एवरी वन इज गोइंग टू रिस्पेक्ट यू. यू कैन ट्राई दिस. बॉडी लैंग्वेज मेक्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस. it is said that
गर्ल्स हैव दिस पावर कि अगर आसपास कोई उन्हें टच करे तो Yeah. वो समझ जाते हैं कि वो टच कैसा Yeah, है. good touch and bad touch, which is very important. And again, you should realize, you should not ignore it. Even if you're getting a negative vibe, you should not ignore it. You should listen to yourself कि हाँ ये गलत हो रहा है. So, and it is very important, you should speak to your parents. Do not hide anything. I cannot tell names of students, but in previous batch we had uh, not a case actually, but they personally, the students came to me, 3 girl students, that our roommate has a boyfriend and he comes to the room and we are not comfortable with that. So you should stand for it, that you cannot bring your boyfriend to the room, we are not comfortable. You should, even if they are girls, if you're not talking to them, they was saying कि नहीं हम ये घर पे नहीं बता सकते, पेरेंट्स को नहीं बता सकते, थोड़ा सा मैटर बड़ा हो गया था. सो दे वर लाइक हम घर पे नहीं बता सकते. बट माई एडवाइस टू एवरी स्टूडेंट एवरी टाइम विल बी, शेयर इट विथ योर पेरेंट्स. इफ़ यू शेयर इट विथ योर पेरेंट्स, दे आर गोइंग टू लिसन. आपको डर लगेगा बताने में, थोड़ा सा प्रॉपर वे में आप अगर उनको एक्सप्लेन करोगे तो वो आपकी सुनेंगे. हो सकता है पहले थोड़ा गुस्सा करें, बट बाद में सुनेंगे, समझेंगे कि हाँ ठीक है बताया है, मीन शी इज़ नॉट रॉन्ग, शी नीड्स हेल्प इन टू दिस. आप इस तरीके से हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर या सिस्टर के साथ शेयर कीजिए कि मुझे ये पेरेंट्स तक बात पहुंचानी है, आई एम नॉट एबल टू टॉक. आप उनकी हेल्प लीजिए. अगर एल्डर सिस्टर एल्डर ब्रदर है, आप अपने टीचर्स से बात कीजिए, अगर आप डायरेक्टली पेरेंट्स से नहीं करते. पर जब तक बात नहीं करेंगे इस टॉपिक पे कि दैट आई एम अनकम्फर्टेबल विथ समथिंग, आई एम बीइंग मेंटली हैरेस्ड फॉर समथिंग फॉर नो कॉज, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किसी से तो बात कीजिए जो आपकी प्रॉब्लम को पॉजिटिव वे में सॉल्व कर सके. उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए जी. उसको जितना दबाओगे, जितना मन में रखोगे, उतना उसका डर बढ़ेगा, उतना उसका स्ट्रेस बढ़ेगा, नथिंग एल्स. जैसे मैम आपने सपोर्ट की बात की, लेकिन अभी देखें अगर हम तो ऐसे मोस्ट ऑफ द वुमेन्स है जिसको सपोर्ट्स नहीं मिलता, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे वर गोइंग टू किल देयर ड्रीम्स. वो अपनी yeah, that is very unfortunate, especially in India it is very unfortunate. But with education this is changing. Like you cannot change the complete family background, or you cannot change the complete environment. So I'll say that you don't have to run away from your family, no, but try to convince your family that I want to do this. Start from a smaller thing. Gradually they may understand and they may let you pursue your bigger dreams. That can be a thing, but you should not run away from your family. छोड़कर भाग जाना is not a solution. No, not at all. फेस करो हर चीज़ को, थोड़ा कभी उनके हिसाब से चलो, थोड़ा कभी अपने ड्रीम्स को फॉलो करो. दोनों को पैरेलली रखना, दोनों को इक्वल रखना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. When it comes to balance, you manage everything. Means you manage many things at one time. So what are your advice so that हम क्या करें जिससे हम भी multitasking में expert हो जाए? Okay, so for multitasking, first of all you should prioritize things, कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए. उससे भी पहले आप एक लिस्ट बनाओ. अगर सपोज़ आप फर्स्ट टाइम कुछ काम कर रहे हो, बहुत सारे टास्क आपको एक साथ मिल रहे हैं, just make a list of things that I have to do this. Then accordingly prioritize things. For example, you have to give invitation to the guest, and a very underweighted thing that you have to keep the tray of welcoming the guest ready. अब आप पहले ट्रे रेडी कर लोगे और इनविटेशन ही नहीं दोगे, सो दैट इज़ गलत, नॉट करेक्ट. ओके, दैट इज़ नॉट एट ऑल करेक्ट. सो यू शुड बी एबल टू प्रायोरिटाइज थिंग्स, दैट कौन सी चीज़ कब करनी है और किसको कितना टाइम देना है. ग्रुप अप ऑल द थिंग्स दैट यू कैन डू टुगेदर. बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर सपोज सोशल मीडिया से रिलेटेड 5 थिंग्स है, सो ग्रुप दोज 5 थिंग्स टुगेदर. उन 5 चीज़ों को एक साथ कंप्लीट करो तो आपका टाइम बचेगा. आप एक कर रहे हो, फिर दूसरी कोई चीज़ कर रहे हो जाकर, फिर तीसरी कर रहे हो, चौथी को, फिर देन अगेन यू आर गोइंग बैक. सो व्हाट इज़ हैपनिंग, इधर उधर टाइम वेस्ट होता है. तो जितनी चीज़ कलेक्टिवली एक जगह कर सकते हैं, जितनी चीज़ें हम शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं, उसको एक साथ करो. देन
after that like once you prioritize, once you give proper time, discipline is also very important कि आप डिसिप्लिन वे में ट्रूथफुली उसको करो कि हाँ ये चीज़ हो गई है या नहीं हुई है. एंड अगेन यू शुड बी एबल टू एक्सेप्ट थिंग्स फ्रॉम योर सीनियर्स. Like for students, they are seniors. For us also, our seniors, principal sir, vice principal sir, the management, when they instruct us, तो हमको you should have that ability कि हाँ ठीक है, अगर ये कुछ advice दे रहे so you should listen to it कि हाँ ये ऐसा हो सकता है. Then think over it for a minute and then take the action. क्योंकि क्या होगा एकदम से, now in the generation the problem is they don't listen. They say we have given 7 things, so those 7 things are correct. They don't listen to it. That's the generation problem. नहीं, अगर आपको कोई भी बड़ा या छोटा कोई भी एडवाइस दे रहा है तो सुनो, सोचो कि हाँ दिस इज़ बेटर, वी कैन सेव टाइम, वी कैन डू दिस थिंग दैट थिंग टुगेदर. ऐसा हो सकता है. सुनो, उसके बाद में समझो एंड देन टेक योर एक्शन. सो विल बी एबल टू मैनेज थिंग्स प्रॉपरली. दैट विल बी गुड. My next question to you is that you said we should always listen to our seniors. So what do you see around that we as your students and your colleagues of your age? There's a generation gap. Yeah. So what are your advice for us and what changes difference do you see for between these generation gap? That is a very big question because it is totally different. It is totally different. I won't say that the previous generation was good or this generation is bad. No, that is not a thing. It is with the world. It is around the world. अपने आप वो फ्लो में वैसा चल रहा है, आपको कोई बना नहीं रहा वैसा. The internet, the other things, they are making you somewhere lazy, they are making you somewhere fast. You have all kinds of students in every batch. You have the ones who are always studying, you have the ones who are always playing sports, you have the ones who are balancing things, you have the ones who have interest in music, everything. ऐसा अलग अलग हर इसमें होता है. तो जनरेशन में सिर्फ इतना ही है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन, जो मैं बोलूँगी डिसिप्लिन, लिसनिंग टू द एल्डर्स, रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स, थोड़ा सा ये कहीं मे बी ड्यू टू द स्कूलिंग थोड़ा चेंज हो गया है. पहले आपने आपके पेरेंट्स से भी सुना होगा कि द पेरेंट्स यूज टू दे वोंट इंटरफियर एनी टाइम इनटू द स्कूल मैटर्स. अगर स्कूल में अगर बच्चों को डांट भी पड़ती थी या कई बार मार भी पड़ती थी, जो ठीक है मार पड़ना गलत है, बट जो डांट पड़ती थी उससे थोड़ा सा बच्चे अपना डिसिप्लिन वे में चलते करते, तो पेरेंट्स इंटरफेयर नहीं करते थे. अभी क्या हो रहा है कि पेरेंट्स इंटरफेयर करते हैं उस चीज़ में. दे लुक इनटू इट कि मेरे बच्चे को क्यों डांटा, उसको ऐसा क्यों बोला. सो द चाइल्ड हैज़ इन माइंड कि मैं जो कर रहा हूँ वो करेक्ट है ना. क्या हो रहा है कि अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ एंड एवरीवन इज सीइंग इट कि मैं गलत हूँ, बट मेरे पेरेंट्स आके बोले नहीं नहीं हमारा बच्चा ही सही है, शी इज़ करेक्ट. सो व्हाट आई विल थिंक बीइंग अ चाइल्ड, आई विल थिंक कि नहीं मैं करेक्ट हूँ जो मैं कर रही हूँ. सो उसकी वजह से थोड़ा सा एंगर इश्यूज़, थोड़ा सा हर चीज़ को प्रॉपरली डाइजेस्ट करना, फेलियर को डाइजेस्ट करना, वो जनरेशन में कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से आगे स्ट्रेस बढ़ता है. यू ऑल मे बी नोइंग वेरी वेल कि सुसाइड का जो एक परसेंटेज है दैट हैज़ गॉन अप. वाई? बिकॉज दैट दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फेलियर. तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है, चलता है उतना तो, बट है दोनों जनरेशन्स में. और हर इसके पहले की भी आप जनरेशन देखोगे तो जो हमारे पेरेंट्स है वो और हमारी जनरेशन में भी है गैप्स है, बट दिस इज टोटली डिफरेंट. एंड द वंस दोज हु आर राइट नाउ इन स्कूल, दे आर टू फास्ट, वे टू फास्ट. As women are going in every field, Yeah. so women must need to be very strong, क्योंकि उनको बहुत सारी क्वेश्चन से इतने ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं अगर कोई वो फील्ड पर्टिकुलर फील्ड चूज़ करे, बिकॉज उस फील्ड में ज़्यादातर सॉरी लेकिन मेंस ही रहते हैं, लेकिन उनको बहुत So that is gender discrimination, no issues. It is again changing with the education. ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो रहा है, बट I'll repeat the thing again कि जो भी आपको करना है, इफ़ यू फील दैट इज़ करेक्ट, इफ़ यू
लॉजिकली फील दैट इज़ करेक्ट. आपका सोचना और बाकी सबका सोचना मैच होना चाहिए. You think, yeah, this is correct. Start with a smaller thing, then go for achieving your dreams. Gender discrimination will be there. That should not harm you. आपको रोकना भी नहीं चाहिए उसको, और आप उसको अकेले रोक भी नहीं सकते. होता है तो थोड़ा सा डाइजेस्ट करो, कहीं ना कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी आएगी. कोई प्रॉब्लम नहीं. हर फील्ड वैसी नहीं होती. While choosing career, अगर आई एम सेइंग दैट मुझे सिविल इंजीनियर बनना है. इट वॉज अ केस ऑफ माई रिलेटिव. शी वॉन्टेड टू बिकम ए सिविल इंजीनियर, बट रिलेटिव सेज दैट नहीं, ये लड़की बाहर जाएगी तो काली हो जाएगी, फिर शादी कौन करेगा. और मतलब इतना पढ़ा लिखा के क्या करना है, इतना पढ़ा लिखा लड़का नहीं मिलेगा समाज में. सो वी आर ऑलवेज सेड दैट यू शुड बी डाउन टू योर हस्बैंड. योर हस्बैंड शुड ऑलवेज बी अबोव यू. Be that in earning, be that in education, be that in societal position. No, this has actually changed. All these scenarios have actually changed. विलेजेस में है, अभी भी है ऐसा. जो आप बोल रहे हो वो करेक्ट है कि पेरेंट्स यही बोलते हैं बाहर जाएगी, काली हो जाएगी, रिश्ते नहीं मिलेंगे हस्बैंड से. बट दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल. लाइक फॉर माई केस, एज आई सेड, my husband supports me in everything, so he never says कि यहाँ क्यों गए, वो प्रोग्राम में उधर क्यों बैठे. no, he doesn't have that problem. बट वो थोड़ी मेंटालिटी का होता है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज करेगी. बट इन द केस लाइक इफ पेरेंट्स आर सेइंग कि अभी ये नहीं करो, वो करो, सो ठीक है, एजुकेशन लो ना आप. यू नेवर नो कि आपको सिविल, आप कर भी रहे हो सिविल इंजीनियरिंग, तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगा कि नहीं. जैसे जो आपने एग्जांपल दिया कि यू नेवर नो आफ्टर 12th यू आर नॉट इनटू इट कि 100% कि मैं ये करूँगी तो मुझे सक्सेस मिलेगा ही, या आपने पूरा 10 years का आगे का प्लान बना के रखा है कि मैंने ये ऐसा ऐसा करना है. तो वैसा नहीं होता है. थोड़ा सा एज में उतना समझ नहीं होती है. तो अगर पेरेंट्स थोड़ा सा कर रहे हैं तो इफ़ दे आर अलाउइंग यू टू स्टडी, थोड़ा सा ग्रेजुएशन दूसरे इसमें कर लो, दूसरे इसमें अपना करियर बनाने की सोचो. यू शुड नॉट गिव अप कि अब वो ये नहीं बोल रहे तो मैं दूसरा भी कुछ नहीं करूँगी. दैट इज़ माई पॉइंट. ऐसा नहीं कि पूरा छोड़ दो, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को क्रॉस करके एडमिशन नहीं ले सकते. आप अपने आगे की पढ़ाई बिना उनके सपोर्ट के नहीं कर सकते. तो कैसा है कि अगर वो बोल रहे हैं कि ये फील्ड नहीं, इसमें कर लो, go for your graduation, go for your post graduation. After that you will definitely get good opportunities in each and every field. कई बार ऐसा होता है कि हम कोई इसमें अच्छा मतलब हम एडमिशन लेते हैं, देन वी रियलाइज़ कि नहीं, हमारी चॉइस से लिया हमने, बट बाद में लग रहा है कि नहीं, ये तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी. तो वो ज़िद नहीं करनी चाहिए. थोड़ा सा पेरेंट्स की सुनो, थोड़ा सा मोल्ड हो, क्योंकि गिव अप करना इज़ नॉट एन ऑप्शन कि नहीं अब नहीं करना ही नहीं है, वो नहीं तो वो भी नहीं, ऐसा नहीं, कुछ और कर लो. यू शुड ऑलवेज लर्न समथिंग. एट एनी एज यू शुड बी इन अ कंडीशन टू लर्न एनीथिंग. मैं अभी स्टूडेंट से बहुत कुछ, अभी टेक्लॉन्स में मैंने ऐसा सीखा कि हाउ यू शुड बी socially together with students, because there's a generation gap. We don't have idea of how to take a selfie properly, how to make reels. मुझे जो students का एक level है अभी, तो अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है कर रहे. So I ask them कि आपने ये कैसा किया, ये अच्छी आई, आपकी ये पिक अच्छी आई, तो आपने क्या यूज़ किया. So you should be able to learn at any age. तो ग्रेजुएशन का भी वैसे ही, आप कुछ सीखो और फिर उसमें अपना और अच्छा करने की कोशिश करो. What is a piece of advice you get and you use it till now? And what is the piece of advice you want to give the younger generation? For the younger generation, I'll tell them that पहला एक डिसिप्लिन में रहना चाहिए. आपने अपने लिए खुद के रूल्स डिफाइन करो. May it be related to your studies, to your hobbies. Everything is important. सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपकी हॉबीज़ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. Sometimes after graduation you may choose your hobby as a whole-time job. That may give you a lot of money as compared to the job that you'll be doing from 9 to 5. So that is there. तो एक डिसिप्लिन होना चाहिए आपकी लाइफ में. Never ever disrespect your parents. नहीं, always give them the proper respect. Next, third thing that is very important, listen to yourself.
गिव टाइम टू योर सेल्फ कि मैंने ये करना है, इसके लिए मुझे इतना टाइम चाहिए और उसके लिए मुझे एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना ज़रूरी। तो अपने आप को सुनो कि हाँ ये है वो है, सब मैनेज करना वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है यंगर जनरेशन के लिए। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, इवन इफ देर इज़ फेलियर, don't get disappointed. That is not the end of life. You can start with a new thing, you can go for another thing. आपको हो सकता है किसी और फील्ड में बहुत अच्छा मिले कुछ। सो नेवर थिंक कि आज यहाँ हमारा कुछ फेलियर हुआ है तो दिस इज़ द एंड, ख़त्म हो गया सब कुछ। नहीं, नथिंग इज़ द एंड, एवरीथिंग इज़ अ न्यू बिगनिंग। दैट्स इट। Thank you so much, ma'am. Most It was very honored to talk to you, and it was very pleasant experience. आपका प्रेजेंस, आपका गाइडेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। आगे बढ़ाने वाला होगा। Thank you so much for calling me here for the special issue of Women's Day. From this stage, I'd like to wish all the women a very happy Women's Day. May this 2023 bring a very hopeful, very enlightened year for each and everyone, all the women as well as the boys, girls, men, everyone. Thank you.